جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں ناکامیاب کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف بتلائی نہیں بلکہ کر کے بھی بتلائی۔ پہلے امتوں میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، پہلے امت میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت بہت تھی، رتبہ عہدہ، حکومتیں بہت مثبت تھی، بہت پختہ تھی، لیکن اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ان کی زندگی میں نہیں تھا، تو اللہ نے انہیں ناکامیاب کر کے بتایا۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ ایسا ہے کہ وہ انسان کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو فرعون نے بات کو بتلانے کے لیے دو قیدیوں کو منگوایا، ایک کو قتل کیا، ایک کو آزاد کیا، اور فرمایا کہ دیکھ میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تعریف کرتے رہے کہ میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے، کہ تیرے پاس جو ہے تیرے اہل و عیال کے، تیرے باپ دادا کا رب ہے، میرا رب پالنے والا ہے۔ ایک تعریف بیان کرتے رہے، لیکن نافرمانی پر اترا، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی، قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے پانی کی ذریعے اس کو ہلاک کیا۔ سمجھتا تھا کہ میری ہر چیز پر حکومت ہے، میں ہی خدا ہوں، میں ہی بنانے والا ہوں، میں ہی کرنے دھرنے والا ہوں، پھر بھی پانی کے ذریعے اسے ہلاک کیا گیا۔ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ میں ڈالا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے محل کا ایک دستور تھا کہ کوئی بھی محل کے اندر داخل ہو اور بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہو تو پہلے بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑتا تھا، پھر بات کریں۔ کوئی وزیر بھی اگر محل میں مجلس میں شرکت کرنا چاہتا تھا تو پہلے بادشاہ کو سجدہ کرنا، پھر ایسو مجلس میں شریک ہونا، وزارت کی کرسی پر جا کر بیٹھنا۔ شرط کیا تھی؟ بادشاہ کو سجدہ کرنا۔ لیکن خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کیا۔ ایک مچھر کان کے ذریعے دماغ کے اندر داخل ہوا، اور ایک مچھر کان کے ذریعے سے سر کے اندر داخل ہوا، اس کے دماغ کو کھانا شروع کیا۔ دستور کیا تھا کہ بھئی آئیں گے جو احباب میرے مجلس میں شریک ہوں گے، پہلے مجھے سجدہ کریں گے، پھر مجلس میں بیٹھیں گے، پھر ان کی بات سنی جائیں گے، ورنہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو تھوڑا وقت گزرنے کے بعد دستور بدلا کہ بھئی جو بھی مجلس میں آئے گا 2 جوتے میرے سر پر مارے گا، پھر مجلس میں بیٹھے گا۔ کہ نافرمانی پر اترے، اللہ نے دنیا میں ذلیل کر کر بتلا اور ناکامیابی کر کر بتلا۔ اس سے حالت میں اس کی موت ہوئی۔ کوئی بھی آئے گا، اگر کوئی فقیر بھی آیا فریاد کرنے کے لیے تو 2 جوتے سر پر مارے گا، پھر مجلس میں بیٹھے گا۔ دستور کیا تھا؟ بھئی سجدہ کرنا ہے مجھے۔ لیکن وقت بدلتا گیا، اللہ کی نافرمانی پر اترا، اللہ کے نبی کے نافرمانی پر اترا، تو اللہ نے اس طرح ذلیل کر کر بتلا کہ اللہ نے کامیابی کا دستور دین کے ساتھ وابستہ رکھا ہے کہ بھئی دین جس کی زندگی میں ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکامیاب ہوگا۔ دیکھو نبیوں کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، ان کے پاس دنیا کا کوئی مال و اسباب نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پاس دیکھیں گے تو کیا تھا؟ بھئی ایک چادر تھی جس پر چارہ بھی ڈالتے تھے، اسے ہی اوڑھتے تھے، اس پر ہی نماز پڑھتے تھے، ایک آسا تھا، بس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جوڑ 10 سال تک استعمال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ واقعہ نہیں ہے اس میں فضائل حکایت صحابہ میں کہ وہ بات ساری طرف پھیل گئی کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو طلاق دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، جا کر دیکھے اجازت مانگ رہی تھی، اجازت نہیں مل رہی تھی۔ جب اجازت ملی تو دیکھا کہ ایک بورے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، جس ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی کھالیں بھری ہوئی ہے، اور وہ بوریوں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ سارے مبارک بدن پر وہ بوری کے حصوں یعنی نشانات اٹھے ہیں۔ ایک خوبصورت بدن تھا۔ کیا تھا اللہ کے نبی کے پاس؟ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جن کے سر کی تپن میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ لیکن سادگی تھی، اس طریقے پر زندگی گزارنے والوں کی کامیابی بتلائی۔ کچھ بھی نہیں تھا لیکن دین تھا ان کے پاس اللہ کے احکام تھے،
اللہ کو راضی کر کے زندگی انہوں نے گزاری تو اللہ نے جنت کے بشارتیں ان کو دنیا میں پہنچائی. اور مددیں کیسے کی؟ ہر ایک کو معجزات عطا کیے، ہر ایک کو اپنے مددیں شامل حل کی. پھر بدر کی لڑائی میں 313 نے ہزاروں کو بھگایا، ہزاروں کو شکست دی. کیسی مددیں اتاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا مال و اسباب نہیں تھا کچھ بھی، اللہ کے احکام اور اللہ کے فرما برداری تھی، اطاعت تھی. اللہ نے کامیابی کر کے بتلایا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کا انسان کیا سمجھ رہے کہ میری کامیابی میرے کام کاروبار میں ہے، میری کامیابی میری کھیتی باڑی میں ہے، میری کامیابی میری نوکری میں ہے، میری کامیابی میرے 48 گھنٹے میں 36 گھنٹے میں کام کرنے میں ہے. نہیں بھائی، کامیابی اللہ کے حکموں پر چلنے میں، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا دستور بتلایا. ایمان کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، قد افلح من اخلص قلبہ للایمان. اللہ کے نبی کے یقین کے ساتھ کرے کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا. قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اس کے دل میں صرف اللہ بستے ہوں، اس کے دل میں کسی چیز کی عظمت نہ ہو، کسی چیز کی محبت نہ ہو، ہر وقت اس کے دل میں اللہ رہتے ہوں. صحاباؤں نے اس چیز کو کر کے بتلایا. مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں، حکایت صحابہ میں ان کا واقعہ درج ہے کہ کیسی زاہدانہ کیسی زندگی تھی ان کی، عیش و آرام کی، عیش و عشرت کی. پھر 200 دینار کا جوڑا پہنتے تھے، ایسی طرح لگاتے تھے کہ وہ گلی سے گزر جانے کے بعد بھی کوئی بھی اس گلی میں جاتا تھا تو کہتا تھا کہ یہاں سے مصیب گزرے ہیں. ایسے عیش و آرام کی، عیش و عشرت کی زندگی تھی. جب انہوں نے اللہ کو اپنایا، جب انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کو بسایا تو دنیا کی عظمت ان کے دل سے ایسے نکلی. ایک تو ان کے گھر والوں نے ساری چیزیں نکال کر بھیج دیا گھر سے باہر، لیکن کیسی زندگی گزار رہی ہیں کہ 2 موٹے کپڑے ہیں، ایک لپیٹا ہوا ہے، اس پر پیوند لگے ہوئے، ایک جگہ چمڑے کا پیوند تھا. اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر رونے لگے کہ بھئی زندگی کیسی تھی کہ 200 دینار کا جوڑا پہنتے تھے، آج ایسی حالت ہے کہ بھئی لنگی ڈال کر، پھٹے پرانے کپڑے ڈال کر زندگی گزار. اور ان کے ہاتھ میں جنگ احد میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اسلام کا. جب ان کو جھنڈے کی ذمہ داری ان کے پر تھی، ان کے پر حملہ کیا گیا، ان کے ہاتھ کو کاٹا گیا، دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، وہ بھی ہاتھ کاٹا گیا، پھر دونوں بازوؤں سے پکڑا، پھر ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. کیسی محبت تھی اللہ سے کر. جب ان کے دل میں ایمان آیا تو دنیا کی عظمتیں نکل گئی کہ سارے گھر کو چھوڑ کر نکل گئے. ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ سنتے نہیں کہ اللہ سے محبت تھی، اللہ کے احکام پر چلنے کی اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کی محبت تھی، خالص ایمان تھا دل میں، تو باپ کی سلطنت کو ٹھکرا کر زندگی گزارا. اور کیسی مدد دیکھی اللہ کی کہ وہ ایک شخص نے ان کو کام پر رکھا، ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک دن میں 10 آدمیوں کا کام کیا. ایک ہفتے بعد میں پھر ان کو کام پر بلایا. دیکھے کہ نوعیت کیا تھی کہ بس صرف گارا لگا رہی، پتھر اپنے آپ آ کر لگ رہے. کہ اللہ کے ذات پر توکل، اللہ کے ذات پر بھروسہ کامیابی کی علامت ہے، اور کامیاب ہو کر گئے. صحابہ جب بھی شہید ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ فزت رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے. سننے والے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی الفاظ کیا ہے، دیکھ رہے ہیں تو شہید ہو رہی، نیزہ مار رہی تو خون کے فوارے اڑ رہی، لیکن کہہ رہی کیا کہ ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی یہ تھی. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی علامتیں بتلائی. وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کیا، اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر 13 سال تک ایمان کی محنت کی تب ان کے دلوں سے 360 کا حیث ہونا نکل گیا. صحابہ پہلے 360 کو پوچھتے تھے، بھئی یہ بت ہماری یہ ضرورت پوری کرے گا، یہ بت ہماری یہ ضرورت پوری کرے گا، یہ بت ہماری یہ ضرورت پوری کرے گا. مولانا حضرت جی ساتھ صاحب رحمۃ دامت برکاتہم فرما رہے کہ جو صحابہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے لیکن 360 کے ذریعے سے مانتے تھے، بھئی یہ کرے گا، یہ کرے گا. آج ہمارا بھی حال وہی ہے کہ ہمارا یقین دکان کی طرف ہے کہ میں دکان سے پلتا ہوں، ہمارا یقین کام کاروبار کی طرف ہے کہ میں کام پر گیا، دکان کھولا تو میں دکان پر پلتا ہوں. ہمارا یقین ہے سو مال و دولت پر ہے. حضرت جی فرما رہی ہیں کہ وہ اس طرح اس یقین کو نکالو، صرف اللہ پر یقین کرو، تب کامیاب ہوں گے، تب اللہ کی مددیں دیکھیں گے. لیکن ہمارا سوچنا کیا ہے، یہ بھائی میں دکان نہیں کھولا، آج سیزن کا وقت ہے،
आज मेरा ऐसा है माहौल है, भाई दुकान नहीं खोला तो मैं नुकसान होगा मेरा, हमारी वो हाल है। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे कि जो शख्स अपने दिल को कुफ्र और शिर्क से पाक करे, कि हर एक वक्त हर एक चीज़ पर अल्लाह पर तवज्जो रखे कि मुझे पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, मुझे खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मौत व हयात की मालिक अल्लाह है, बीमारी शिफा की मालिक अल्लाह है, हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े इख्तियार में है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी की अलामतें बतलाई। वह नफ्सहु मुतमइन्नतन, अपने नफ्स को मुतमइन रखा कि उसे अल्लाह के याद पर और अल्लाह के अहकाम पर चलने में इत्मीनान मिलता। आज हमारे दिल का हाल हम देखें कि हमारा दिल कहाँ है, कि अल्लाह के ज़ात पर अल्लाह की याद में हमारे दिल को सुकून मिलता है, कि अल्लाह के हुक्मों पर चलने में हमारे दिल को सुकून मिलता है। आज हम गौर व फिक्र करें कि हमारा दिल किस चीज़ पर है। अगर हम सोचेंगे तो हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है, दुनिया में लगने पर हमारे दिल को इत्मीनान मिलता है, दुनिया पर चलने पर, दुनिया के ख्वाहिशात को पूरा करने पर हमारे दिल को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। आज़ान हो रहे हैं, आज़ान हो रहा 5 वक्त में, मस्जिद की बाजू में घर है, फिर भी मोबाइल हाथ में है तो सुकून है। मोबाइल रख को नमाज को आने की क्या बोले कि अपने दिल को अल्लाह के हुक्मों पर चलने पर और अल्लाह की याद पर चलने पर, अल्लाह की मर्जियात पर चलने पर इसके दिल को इत्मीनान मिलता हो, ये शख्स कामयाब हो गया। यकीनन अल्फाज इस्तेमाल करें अल्लाह के नबी, यकीनन। आज हम सोचे कि भाई हमारे दिल का क्या हाल है, कि हम सोचे कि हमारे दिल का हाल क्या है, कि ना हम ना अल्लाह यहाँ मस्जिद में रहकर, मस्जिद के अतराफ में रखकर हमारा यह हाल है कि अल्लाह हमें हुक्म दे रही है नमाज पढ़ो। नमाज का हाल हमारा यह है कि हम नमाज पढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती। मोबाइल में बैठने में, काम कारोबार में रहने में, दुनिया में रहने में, लोगों के साथ बातें करने में हमारे दिल को इत्मीनान मिल रहा है। और हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब होना, हमारा जन्नत मिलना इतनी आसान बात नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जब सजदे में गिरकर रोएंगे, जब अल्लाह उनको वो अल्फाज देंगे, तारीफ़ के जुमले, जो अल्लाह के नबी खुद फरमाने कि मुझे अभी पता नहीं है, तब मैं सिर्फ उस वक्त उन अल्फाज से अल्लाह की तारीफ़ करूँगा, तब अल्लाह सिफारिश का मौका देंगे। तब अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे कि अल्लाह कि किसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर ईमान है, उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दीजिए। ये आसान बात नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब होंगे, जन्नत में जाएंगे, यकीनन जन्नत में जाएंगे, लेकिन वाया जहन्नम जन्नत में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे अमाल के बदौलत कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमने दुनिया की मोहब्बत में हमने ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कामयाबी का यकीन के साथ ये बात नामुमकिन है कि कामयाबी कब मिलेगी, जब अल्लाह के हुक्म पर हम जिंदगी गुजारेंगे। फिर राई के दाने के बराबर की बात आएगी, फिर अल्लाह राई के दाने के बराबर ईमान रखने वालों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर ज़र्रा बराबर की हम सोचते हैं, हम हदीसों के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इतनी आसान बात नहीं है, बहुत सख्त चीज़ है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिसानहु सादिक़न, अपनी ज़बान को सच्चा रखा, यकीनन वो शख्स कामयाब होगा जो अपनी ज़बान को सच्चा रखे। आज हमारा हाल देखिए कि हर बात में झूठ है, हर बात में झूठ है, कि छोटी छोटी बातों पर हम झूठ बोलते हैं। भाई ऐसे का ऐसा है, ऐसे का ऐसा है। आसान तरतीब है कि सच बोलना कितना आसान है, हर सच में नजात है। एक वाक़ये से मैं बात, इस सच की बात आपको समझाता हूँ कि एक फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख ने वाक़या लिखा है कि एक बच्चे को माँ मदरसे में भेज रही थी, वक्त के अल्लाह वाले बने बाद में, लेकिन उनके बचपन के हालात उसमें लिखे हैं हज़रत शेख ने कि बच्चे को माँ मदरसे में भेज रही थी, तो पैसे मदरसे में खर्च के लिए उसे देने के लिए वो बगल में पैसों को सिल दिया। वो बच्चा जा रहा है, रास्ते में से ऐसो डाकू ने रोका, भाई तेरे पास क्या है? क्या बोले है, क्या है? पैसे हैं। फिर चेक करे, उसे ऊपर से नीचे तक का चेक करे, का भी पैसे नहीं मिले। बोले अभी सच बोल, तेरे पास क्या है? क्या तुझे छोड़ता ही? सच्चा बोला तो तुझे छोड़ता ही। बोल रहे हैं मेरे पास क्या है? पैसे हैं। कहाँ है? भी चेक करे, कहा भी देखे पैसे से नहीं मिल रहे। 2-3 बार जब ऐसा चेक करे तो डाकू को गुस्सा आया, गुस्से में बोला, उन्हें बच्चा डरा, हाय मेरे पास पैसे तुम्हें देख रहे नहीं, मेरे माँ ने मेरे पैसे यहाँ बगल में शेष हुई। फिर उन्हें चेक करे तो वहाँ सच में पैसे थे, परेशान हुए। आज देखिए तो कौन किसी पूछे तेरे पास क्या है, क्या बोलते, क्या नहीं बोलता है।
पहला पूछे तो नहीं बोलता, इन्हें हाय भी बोल रहा है, ढूंढे तो मिल रहा भी नहीं, नहीं जा भी सकता था, फिर भी पूछ नहीं तो भी हाय बोल रहा है। फिर चेक करें, जब पैसे मिलने के बाद में उसे लेको गए सरदार के पास, सरदार सब सुना क्या क्या हुआ। उसे पूछा कि बेटा तेरे अंदर तू सच बोलने का तुझे कौन ने सिखाया? तो सच जो बोल रहा है कि तू झूठ बोले असता तो भी तेरे पास पैसे है, हमने मालूम है, हमें चेक करें तो बोला था हाई, फिर भी नहीं मिले थे, तू नहीं बोल को गया असता तो भी बच्चा असता। वो निकलने गया नहीं, अगर मैं यहाँ झूठा बोले असता तो मुझे वहां अल्लाह पकड़े असता। आज मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी माँ ने मुझे तलकीन करे कि सच बोले तो बचते ही तुम्हें, सच बोले तो हर एक मुसीबत से नजात है, सच बोले तो अल्लाह की मदद आता। ये बच्चे की सच बोलने पर वो पूरा के पूरा डाकुओं का गिरोह मुसलमान है कि अल्लाह हिदायत देने पर किसी चीज के मोहताज नहीं है। हमारे कुछ फेल हैं, कुछ काम हैं जिस पर अल्लाह मुल्कों को हिदायत देते हैं, अल्लाह किसी भी हिदायत दे सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी देखो कि हम झूठ के साथ जिंदगी गुजारे और बोल रही कि हम कामयाब होना कैसे हो सकते, कैसे झूठ बोले उसे भी समझाए हमें झूठ कैसा बोलते हैं। कि ले को ऐसा चीज 100 रुपए को इसे बेच रही 150 रुपए को, उन थोड़ा कम करो बोले को तो नहीं हो, हम नच परवड़ता नहीं, हम नच मिलता नहीं करते, ले को आए करते कोई नहीं, 100 को ले को आए बेच रहे 150 को, ऐसा तो बोल सकते नहीं। कारोबार है, हम उसमें कत्ता भी मुनाफा कमाए तो हमारा फायदा है, कमा सकते हैं, कारोबार है, क्यों बोल सकते हैं हम देख भाई तुझे परवड़ते तो ले, मेरे पास 150 को मैं बिका रू बेच रू, तुझे परवड़ते तो ले, नहीं तो निकल। ऐसा बोलना ये झूठ है कि मुझे भी मस्जिद परवड़ता नहीं, लाए करते कोई नहीं, 100 को लाए बेच रहे 150 को, जरा 10-20 रुपए कम करे तो मुझे परवड़ता नहीं, यो बोलना ये अल्फाज इसकी झूठ के अल्फाज है। फिर इससे कमाए से फायदा होने वाला कैसे नुकसान होने वाला, बोलो बेबरकती का जरिया है, कामयाब कैसा होंगे। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने व खलीक़तहु मुस्तक़ीमतन, अपनी तबीयत को दुरुस्त रखा कि भाई इसकी तबीयत अच्छाई पर चलते हुए बुराई की तरफ माइल न होती हो। आज हम हमारा हाल देखें कि हमारी तबीयत कैसी है कि पूरा रमज़ान का महीना एकदम एक सुई के साथ में रोज़ों का अहतमाम है, तरावी का अहतमाम है, 5 वक्त के नमाजों का अहतमाम है, लेकिन ईद के दिन सारे के सारे थिएटर हाउसफुल रहते, देखे तो सब हमारे से लोग रहते, हमारा से नौजवान तबका रहता है, हमारा जो बड़े बड़े जिम्मेदार हजरात रहते कि कहेगा तो ईद के पहले दिन पिक्चर रिलीज हो रहते कि जो इतने महीना भर जो हमारे अमाल आए, जो महीना भर हमारी तबीयत अच्छाई की तरफ चली, 1 मिनट 1 लम्हे की में हमें उससे तबीयत को हमारी बुराई की तरफ चला रही, तो कैसा कामयाब होंगे बोलो। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जअल उज़ूनहु नाज़िरतन, अपने आंखों को ऐसो हक सुनने वाला बनाया। सहाबाओं की सिफत थी कि जा कहीं भी बुराई की बात को सुनते थे तो ऐसे बहरे बन जाते थे, कानों में बोट डालते थे। वो ऐनहु नाज़िरतन, अपनी आंखों को ईमान की नजर से देखने वाला बनाया। आज देखो हमारे हाल क्या है कि हम हर एक चीज को आजमत की नजर से देखते, ईमान की नजर से नहीं देखते। किसका बंगला देखे तो भाई क्या भारी बंगला है, मेरे पास भी ऐसा होना, किसकी गाड़ी देखे तो भाई क्या भारी गाड़ी है, मेरे पास भी होना, किसका मोबाइल देखे तो क्या अच्छा मोबाइल है, मेरे पास भी होना, किसके कपड़े अच्छे देखे तो भाई मेरे पास भी होना। नहीं भाई, इसे ईमान की नजर से देखना कि भाई यो इसकी वक़्त, इसकी कदर और कीमत अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह खुद फरमा रही कि मेरे पास अगर मैं दुनिया की मेरे पास मच्छर के पर के बराबर भी कदर और कीमत होती तो मैं काफिर को एक घुट पानी भी न पिलाता। ऐसी सख्त चीज़ है, ऐसे हमें ज़िंदगी गुजारे और कामयाबी नामुमकिन है। हम कामयाब नहीं हो सकते। असल कामयाबी दिन में है, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलने में है, अल्लाह के अल्फाज पर चलने में, अल्लाह के नबी के हैसो हुक्मों पर चलने में कामयाबी है। आज हमारी ज़िंदगी उसके खिलाफ गुजर रहा, हमारी ज़िंदगी ईमान के खिलाफ गुजर रहा, हमारी ज़िंदगी अमल के खिलाफ गुजर रहा और हम कामयाबी का तस्वुर करें, ये नामुमकिन है। इसके वास्ते शर्त क्या लगाए कि हमें हमारे ईमान को बनाने की ज़रूरत है, हमें हमारे अमल को बनाने की ज़रूरत है। ईमान क्या है? ईमान क्या चीज़ है? अल्लाह के हुक्मों पर चलने को, नबी के तरीके पर चलने का नाम ईमान है। इस बात का यकीन नामी पड़े तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इसकी लफ्ज़ माना हम सारे के सारे पढ़ते हैं, लेकिन इसके मफ़हूम में कभी गौर करें। ला के माना नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब अल्लाह के सिवा कोई चीज़ मोतबर नहीं, अल्लाह ही है। अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जो हमें खिलाने पिलाने वाली है, अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जो हमें पालने वाली है, अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जो बीमारी शिफा के मालिक है, अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जो सारे कायनात को चलाने वाली है।
अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जो ज़मीन में से गल्ला उगाने वाली, आसमान से बारिश बरसाने वाली, हर एक की रोज़ी का इंतज़ाम करने वाली, कि अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है। इसका यकीन हमारे दिल के अंदर आना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी है, इसका यकीन हमारी ज़िंदगी में आना। आज हमारी ज़िंदगी नबी के तरीके के खिलाफ गुजर रहा, हर एक सुन्नत को छोड़कर ज़िंदगी गुजर रहा, कि सहाबा हर एक सुन्नत को जांच कर परख कर अपनी ज़िंदगी में लाया करते थे। एक जंग का वाक़या सुनाया कि भाई जंग कर रही सहाबा, लेकिन फतह भी नहीं हो रही, शिकस्त भी नहीं हो रही, सिर्फ मशक्क़तें उठानी पड़ रही। तो मशवरे में बैठे भी क्या हाल है, क्या ऐसा हो रहा है। गौर व फिक्र करने के बाद में पता चला कि भाई एक सुन्नत छूट रही है हमारी, मिसवाक की सुन्नत, कितनी मामूली सी सुन्नत है। फिर मिसवाक की सुन्नत छूट रहा, फिर मशवरे के बाद में उठे सारे के सारे, टहनियाँ तोड़कर दरख्त की मिसवाक करना शुरू किया। तो देख रही काफिर की नहीं मिसवाक कर रही, नहीं दाता रगड़ रही, डर को भाग को गई थी, नहीं हम लोग चबा को खाते हैं क्या करो, इन्हें ऐसा लकड़िया को चबा खा रही तो हम ही क्या इनके सामने करो, डर को भाग को गए। सुन्नत के अंदर ऐसा रोब है कि अल्लाह ने उनको फतह दिला। ये तो बात का वाक्य है। एक कारगुजारी सुनाए कि एक इंटरव्यू को एक शख्स गया एक कंपनी में, सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू को गया। तो इन्हें सुन्नत जुड़े सो आदमी हत्ता, साथी जुड़े सो हत्ता हूँ, सुन्नत के अंदर है सो लिबास वगैरह, दाढ़ी सुन्नत वगैरह, वो इसके अंदर रोब के अंदर गया होनी, उसके जेब के अंदर है ऊपर के खिस्से में मिसवाक हत्ता। जो इसका इंटरव्यू लेने वाला मैनेजर इसे देख को करने का, तू खड़ा बड़ा हो गया, तू कहा इंटरव्यू को आए, एक तो कपड़े तो यूनिफॉर्म की तो तू धज्जा उड़ाए, उसमें तू भी वो खिस्से में लकड़ी ले को क्या आए करने लगे। वो साथी से बोलते बोलते चलो क्या रुक करने लगे, लकड़ी नहीं है, ये मामूली चीज नहीं है, मिसवाक है। फिर उसकी फजीलती गिनानी शुरू किया, उसके 70 फायदे जो हदीसों में सुनते हैं, वे मिसवाक करे तो चेहरे पर नूरानी आता था, कलमी की मौत आता, वे मुंह की बदबू जाता, आंखों की रोशनी बढ़ता। वो एक लकड़ी के नहीं फायदे गिनाने चालू करा। वे मैनेजर सुना बस करने, बस तेरी जॉब पक्की करने लगे। क्या इसी का इसका इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। फिर बोले जॉब की पक्की कहे तो एक लकड़ी के इतने फायदे गिना रहे, तो मेरे प्रोडक्ट के कितने फायदे गिनाने वाला, मेरा प्रोडक्ट का सेल कत्ता करने वाला, इसकी बिना पर उसे जॉब दिया। यो सुन्नत को हम ही हिकारत समझ को, मामूली समझ को कर रहे। क्या हजरत जी फरमाने कि जो हम ही अमल को छोटा समझेंगे, जो अमल को हम ही छोटा समझ को करेंगे, वो अमल क्या है, सो आजमत पहले दिल से निकलते आहिस्ता आहिस्ता, फिर अमल जिंदगी से निकल को जाता है। और वो जिंदगी से अमल निकल को गया, वो वक्त में वो जिंदगी को वो हिस्से में बेदीनी आई, तो वहां से ऐसो बेदीनी हमारी जिंदगी में दाखिल होती है, वहां से हमारे अंदर अमल का ऐसो तनज़्ज़ुल दाखिल होता है। हर वक्त फिर फिराक नहीं रहती, हर एक अमल को छोटा समझ को करने चालू करते, तो हर एक अमल छुट्टे जाता है, इतना छुट्टे कि उन्हें काम से बैठ को छोड़ता है, इतना छुट्टे कि उन्हें ऐसा दूर होता है कि उसे पकड़ को लाना पड़ता है। भाई चलो मुलाक जमात में आए तो में जाते हैं कि भाई 4 महीने लगाए सो साथी है, भाई यही पुराना साथी है, कुर्बानी में वक्त लगी, लेकिन आज ऐसे हालात है कि भाई मस्जिद में नहीं आ रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहा? क्या पहले से उन्हें छोटे छोटे अमल को ऐसे छोटा समझ को करने की वजह से निकल को जाता। ये हर एक सुन्नत को बड़ा एकदम उसकी हर एक सुन्नत की आजमत के साथ उस सुन्नत को करेंगे तो हम ना उस सुन्नत का रोब हमारी जिंदगी में आएंगे। 3 चीज़ें बोले कि 3 चीज़ों के जरिए इंसान को इज्जत मिलती है, मुसलमान को, और 3 चीज़ों के जरिए जलील होता है। 3 चीज़ क्या बोले भाई? जब उसके दिल में अल्लाह की अजमत बैठेंगी, उसके दिल में दुनिया की अजमत निकल कर अल्लाह की अजमत बैठेंगी, तो अल्लाह उसे इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ बोले, उन्हें अल्लाह के नबी के तरीके के अपनी ज़िंदगी में लाएंगा तो उसका रोब दुनिया पर पड़ेगा, उसके ज़रिए अल्लाह उसे इज्जत की बुलंदी पर पहुंचाएंगे। तीसरी बात बोले, उन्हें काफिर को हिदायत की नज़र से देखेंगा तो अल्लाह उसे इज्जत की बुलंदी पर पहुंचाएंगे। जिल्लत की 3 बातें बोले कि उसके अंदर जो माल यहूदियों के पास है, जो यहूद और नसारा के पास जो माल है, दुनिया में जो माल है, अगर वो माल किसके अंदर इज्जत पैदा होंगी, अजमत पैदा होंगी, तो इन्हें जलील होंगे। अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा, गैरों के तरीकों को मोहब्बत की नज़र से देखेगा तो इन्हें जलील होगा, और इन्हें काफिर को हिकारत की नज़र से देखेगा तो इन्हें जलील होगा। कि साहबा किसी भी हिकारत की नज़र से नहीं देखते थे, हर एक के बारे में सोचते थे कि भाई अगर इन्हें मुसलमान होता तो कितना भारी होता, अगर इन्हें ईमान वाला होता तो कितना भारी होता, कैसा बेहतरीन काम कर रहा। कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, लेकिन ये 3 चीज़ों की बात है कि हमारे अंदर
है सो दुनिया की आजमत हमारे दिल से निकाल को अल्लाह की आजमत को हमारे दिल के अंदर बिठाना है। ये ईमान का मकसद है, ये ईमान की अहमियत है। ईमान असल चीज़ है कि दुनिया में कोई साथ जब हमारे सारे के सारे सहारे हमारे साथ छोड़ेंगे तब हमारा साथ ईमान देगा। कब्र के मैदान में, हश्र के मैदान, कब्र में, हश्र के मैदान में हमेशा हमेशा की जहन्नम से बचाकर हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल कराएगा। ऐसा कीमती चीज़ है कि एक ईमान वाले की बदौलत अल्लाह सारी दुनिया को चला रही, सारी कायनात को चला रही। ईमान वाला सोचे कि भाई कितना कीमती है। अगर इन्हें इसकी कीमत को समझेगा तो इन्हें ऐसा अपने आप को ऐसा नहीं गिराएगा, ऐसा जलील नहीं होगा। उन्हें कीमत को समझेगा तो उसके अंदर अल्लाह के अहकाम को पूरा करने की इस्तिदाद पैदा होंगी, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलने की इस्तिदाद पैदा होंगी। भाई अल्लाह के हुक्म में सबसे अफजल हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म क्या है? भाई नमाज है। आज हमारा हाल देखें कि नमाजों का हाल कैसा है कि उम्मत की सारी की सारी देखें तो सारे के सारे नौजवान तबका कत्ते लोग का ही भारत की, इंडिया की आबादी देखें तो 700 करोड़ में 36 करोड़ लोग का मुसलमान है। 36 करोड़ लोग का मुसलमान है। आज अजान हर एक इलाके में हुई नहीं, मगरिब की हर एक जगह, हर एक मस्जिद में, हर एक मोहल्ले में अजान है। आज कत्ते जने नमाज पढ़े, कैलकुलेट यहाँ कच करेंगे वाड़ी का तो 10-20% आज तो हफ्तेवार एक को हर एक इलाके के लोग आए, वाड़ी के लोग का देखे तो 10% भी आज नमाज पढ़े नहीं चाहिए। बाकी 90% का हाल क्या है? 90% की जिंदगी कैसा गुजर रहा? एक वक्त का नमाज का छोड़ना, बादल के वजह से नमाज छुट्टी, इसकी कजा हुई, बाद में पढ़ा, फिर बाद में पढ़ने पर भी नहीं 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलेंगे, बाद में पढ़ने पर भी। और एक नमाज का छोड़ना जानबूझकर नहीं, गफलत से छुट्टी, गलती से छुट्टी, जानबूझकर छोड़ा नहीं, गलती से छुट्टी, तो एक नमाज को छोड़ने से इस्लाम के दायरे से बाहर लेकर जाता। इस्लाम, ईमान, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज है। नमाज निकली तो इस्लाम कुफ्र में दाखिल होता। कितने बड़ी बड़ी वईदें हैं और फजीलतें इसकी बेहिसाब हैं। नमाज पढ़ने पर अल्लाह के वादे, नमाज पढ़ने पर अल्लाह की मददें। सहाबा ने इस बात को समझा था कि नमाज पढ़ने पर अल्लाह कैसी मददें करेंगे, नमाज पढ़ने पर अल्लाह क्या क्या देंगे। सहाबा ने इस बात को समझकर अल्लाह से लेकर बतलाया। कैसा ले कि मुर्दों को जिंदा करे। आज देखो स्मार्ट हॉस्पिटल्स बने, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना साइंस तरक्की करे, लेकिन साइंस के अंदर एक मक्खी को जिंदा करने की भी ताकत नहीं है। यहाँ तक कि कुछ बीमारियों का इलाज भी अभी साइंस नहीं कर सकता। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो वो साहबी का वाक्य नहीं है, साहबिया रज़ियल्लाहु अन्हा का, नो मुस्लिम हुई, उनके बच्चे का इंतकाल हुआ, भाई नहला धुला कर उसको तैयार किया गया, जनाजी की नमाज बाकी थी, दफनाना बाकी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा गए कि ऐसा एक जनाजा तैयार है, उसकी नमाज पढ़ानी और दफनाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई उसके घर में कोई है तो उसकी इजाज़त लो। जाकर उसकी वालिदा से इजाज़त लेने लगे। उनकी वालिदा ने कहा कि, वो साहबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि भाई रुको, मैं 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ, फिर लेकर जाकर दफन करना। वो साहबिया ने 2 रकात नमाज पढ़ी। किस कदर नमाज पढ़ी होंगी, किस अंदाज में नमाज पढ़ी होंगी, किस खुशू खुजू के साथ, किस अल्लाह के ताल्लुक के साथ, किस यकीन के साथ नमाज पढ़ी होंगी। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह इस बच्चे को तो क़यामत के दिन जरूर जिंदा करेगा, इस बच्चे को तो क़यामत के दिन जरूर जिंदा करेगा, लेकिन तब मेरे काम नहीं आएगा। लेकिन आज अगर इस बच्चे को तू जिंदा करेगा तो जो लोग मुझे नहीं तुझे ताना मार रहे हैं कि तूने एक अल्लाह को मानी, तेरे बच्चे का इंतकाल हुआ, ऐसा तो जो लोग तुझे ताना मार रहे हैं वो मुझे बुरा लगेगा, वो ताने से ऐसो मैं बचूंगी, तो मेरे बच्चे को जिंदा कर। अल्लाह ने उस बच्चे को जिंदा किया। सहाबा फरमा रहे हैं कि वो बच्चे ने हमारे साथ खाना खाया, एक अरसे तक बच्चा जिंदा रहा। कैसे नमाजें होंगी? वो तो सहाबाओं के वाक़यात थे। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम काकी जो पड़ा, रोटी काकी बोले तो उसे अरबी में रोटी की तशबीह देते हैं, काकी उनका जो नाम पड़ा। उनके वालिदा ने उनका जहन कैसा बनाया था देखो, कि जब वो मकतब से आते थे तो उनकी वालिदा कहते थे कि भाई 2 रकात नमाज पढ़ो वज़ू कर कर, अल्लाह तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करे। और जब वो बच्चा 2 रकात वज़ू कर कर 2 रकात पढ़ने की शुरू करता, तब तक वालिदा खाना बनाकर पीछे रख कर दस्तरखान झाँक देती थी उस पर। नमाज पढ़ने के बाद में जब वो खाना मांगता तो भाई धुंधो, घर में धुलने के बाद में खाना मिलता तो बच्चा खा लेता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कुछ काम से उसकी वालिदा बाहर गई थी, उनकी वालिदा, और वक्त हुआ, बच्चा मकतब से घर आया, वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी। उसे यकीन बन गया था उसका कि मुझे खिलाने वाली ज़ात अल्लाह के रोज़ाना का मामूल था, नमाज पढ़ रही इधर।
नमाज पढ़ को दुआ कर रही हूँ, वालिदा को ध्यान में आया कि भाई वक्त होता जा रहा है कि बच्चा घर पर आया होगा, उन्हें वजू भी करा रहेगा, 2 रकात भी पढ़ा रहेगा, तो उसके खाने का क्या। हाँ माँ दुआ कर दिया कि अल्लाह मैंने मेरे बच्चे का जहन तेरे ऊपर मैंने मेरे बेटे का यकीन, बच्चे का यकीन तेरी ज़ात पर डाले सो है। अगर आज वो यकीन हटेगा तो फिर परत उसका यकीन बनना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह मैं उसे बनाकर खिलाती थी लेकिन नाम क्या था कि तू खिलाता है। ये अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा कर। वहाँ माँ दुआ कर रहे हैं, यहाँ बच्चा दुआ कर रहा है। भी पहली मरतबा दुआ करे तो कुछ नहीं था, घर में तलाश करें, वापस बच्चा नमाज पढ़ रहे, वापस रो रो को दुआ कर रहे। उसके बाद में फिर वापस तलाश करे तो खाना था, खाना खाकर आराम करे। माँ आने के बाद में फौरन एकदम जल्दी जल्दी खाना तैयार कर को उसके पर झाँक को भी बच्चे को उठाने, उठो नमाज पढ़ो, खाना नहीं खाना, बोले मैंने खाना खा लिया और आज मैंने ऐसा खाना खाया कि इसकी लज्जतें रोजाना की लज्जतें से बेहतर थी। आज का जो खाना था रोज के खाने से बेहतर था। कि बच्चों ने लेकर बतलाया अल्लाह से। आज हमारी नमाजों का हाल ये है कि वो कारगुजार एक ऐसा वाक़या बोल कर हमने समझाया जाता था कि वे नमाजों का हाल क्या है कि एक जगह ईशा की नमाज चल रही थी, फिर इमाम ने नमाज पढ़ाई तो नमाज सलाम फिरने के बाद में मजमे में चर्चा होने लगी, भाई 3 रकात हुए, कौन बोले 4 रकात हुए। इमाम बोल रहे 4 रकात हुए, लेकिन पिछले वाले कौन बोल रहे 3, कौन बोल रहे 4। फिर एकला उसमें उठा, जरा व्यापारी था उन्हें जरा बड़ा अच्छा खासा, उठ को करने लगे कि 3 रकात हुई। पीछे कैसा 3 रकात हुई, तू इतनी दावे से बोल रहे, हम ही इमाम साहब बोल रहे 4, इसमें भी आधे लोग का बोल रहे 4, तू बोल रहे 3, कैसा 3 है? नहीं करने लगे 3 रकात हुई। कैसा 3 हुए? तो मेरे 4 दुकानें ही करने लगे। रोजाना की ईशा के नमाज में मैं दिन भर का हिसाब किताब करता हूँ, आज अभी तक मेरी 3 दुकान का हिसाब हुए थे, 4थी दुकान का हिसाब नहीं हुआ। हमारे नमाजें ऐसे हैं कि हम गौर व फिक्र करें कि हमारे नमाजें कैसी हैं। कि साहबाओं के ज़माने में देखो, साहबाओं के ज़माने में शक्कर क्या तीखी थी, शक्कर मीठी थी। आज का शक्कर तेज हुई या क्या? शक्कर मीठी है तो आज साहबाओं के ज़माने में चटनी तीखी थी, आज भी तीखी है। साहबाओं के ज़माने में नमाजें वही थी, फजर की 2 रकात नमाज आज 4 रकात हुई है क्या? जोहर की 4 रकात आज 6 रकात हुई है क्या? 2 रकात हुई है क्या? नहीं, नमाजें वही थी, कलाम कुरान पाक वही था, लेकिन असरात यकीन हाँ खुशू खुजू वो ज़माने का आज के ज़माने में नहीं है। उस यकीन को बनाने की मेहनत है, उस यकीन को बनाने की मेहनत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति फ़िस्सलाह, कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर इसकी नमाज सही होंगी तो बाकी अमाल भी सही होंगे। फ़इन सलहत सलह साइर अमली व इन फसदत फसद साइर अमली, अगर इसकी नमाज खराब होंगी तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। आज हम सोचें कि भाई हमारी नमाजें कैसी हैं, आज हमारा हल नमाजों के एतबार से क्या है। नमाजों पर नमाजें कज़ा हो रही हैं, कह रहे कि भाई कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आज से शुरू करेंगे, आज शाम से शुरू करेंगे, ऐशा को आतून तो मगरिब को आतून तो फजर को आतून, तो ऐसा हल हमारा है। ठीक है, आज मगरिब की नमाज को हमें मुलाकात में गए, बोले ईशा से पढ़ते हो, ठीक है बाबा, तो ईशा से पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन आज मगरिब का तो अल्लाह को क्या जवाब देने वाला, आज असर का तो अल्लाह को क्या जवाब देने वाला, आज जोहर का तो अल्लाह को क्या जवाब देने वाला। अल्लाह ने सहूलत दी थी, अल्लाह ने ऐसा बेहतरीन जिस्म दे, करोड़ों का जिस्म है। आज किसे पूछे तेरे आख्या दे जरा, मैं तुझे करोड़ रुपए दी, तुम देते क्या नहीं? तेरा दिल जब दे जरा, मैं तुझे हुनासो मुंह बोली रकम दी, तू देते क्या? बोले तेरी किडनियां दे जरा दोनों, तुझे हुनासो रकम दे, तुम देते क्या? नहीं देता। ऐसा करोड़ों का जिस्म जो खालिक ने दे, वो खालिक के सामने हम ये सर को झुकाने को मना करनी, तो ये सर जरूर दूसरों के सामने ऐसो मांगने के एतबार से झुकेगा। आज हम इस सर को अल्लाह के सामने नहीं झुकाएंगे तो ये सर जरूर किसी ना किसी दिन दूसरे के सामने झुकेगा। इसके वास्ते देखो नमाजों का एहतिमाम है। हमारी जिंदगी ऐसे नमाजों के खिलाफ गुजरनी इतनी आसान बात नहीं है। नमाजों का छोड़ना, एक नमाज पर 2 करोड़ 28 लाख बरस जानबूझ को छोड़े तो नहीं, गलती से छूटे तो 2 करोड़ 28 लाख बरस जहन्नम में जलने का, उसकी एक नमाज पर, बाकी नहीं। बाकी अमाल का छूटे तो उसका हिसाब किताब कैलकुलेट मारे तो अलग, यूं जन्नत में नहीं जाने वाले। आखिरी जन्नती का हाल बोले, हदीस में आता है कि आखिरी जन्नती जब जन्नत में जाएगा, उसे नहरे हयात में डाल दिया जाएगा, जहन्नम से निकाल कर तौर ताज़ा होगा, उसके गले में पट्टा डाल दिया जाएगा सोने का, और उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जन्नत में जाने के बाद में उन्हें देखेंगे कि एंट्री पॉइंट से लेकर गेट तक ऐसा कालीन बिछे सा है। इन्हें सोचने वाला
वहां जरा जहन्नम में आता तो क्या काले काले लोका सब ऐसे बड़े बड़े फरिश्ते, इधर से एकला मारता है उधर से एकला मारता है, ये भी सच्चा है कि ये भी झूठा, चाहे दिखाने की दाता अलग खाने की दाता अलग, हमें बोलते नहीं क्या वो ऐसा चाहिए क्या करने वाला होने। हदीसों में बात आती कि उन्हें परेशान होने वाला ये क्या है, अभी जाने वाला भी, फिर इसके फरिश्ते कहने भी मरहबा मरहबा, हजरत कहा हमें तुम्हारा सालों से इंतजार करो, हमारी जन्नत ईमान वाले के अमाल के बदौलत अमाल के बकदर तैयार है, लेकिन वाया जाना हमें महंगा पड़ता है, डायरेक्ट जाने की वस्ते तरतीब है। 5 वक्त की नमाज के हमें खुद बोलते नहीं हदीसों में सिफात की मुज़ाकरे में, जिन्हें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे अल्लाह से 5 नमाज से नवाजेंगे, क्या बोले पहले रिस्क की तंगी दूर करेंगे, जिसके वास्ते सारी दुनिया भाग रहा, रिस्क का तो खाना पीना नवे, हर एक जरूरत सोकर उठने से लेकर रात को वापस सोने तक की हर एक जरूरत को अल्लाह पूरा करने वाले हैं नमाजों के एहतिमाम पर। दूसरा, कब्र के अज़ाब से महफूज रखेंगे। कब्र एक जहन्नम का बाग, जन्नत का बाग है और जहन्नम का गड़ा भी है हमारे अमल की बदौलत। वो हदीस में नहीं आता कि कोई मोमिन बंदा अगर कब्र में दफन किया जाता है तो वह कब्र कहती है कि तेरा आना मुबारक है, जितने लोग मेरे पुष्ट पर चलते थे तो सबसे मुझे महबूब था, अब तू मेरे हवाले किया है तो मेरा हुस्न सलूक देखेगा। वे कब्र उसके इंतहाई निगाह तक फैल जाती है, वसी हो जाती है, और जन्नत का बिछौना बिछाया जाता है, जन्नत के लिबास पहनाया जाता है और जन्नत की खिड़कियां खोली जाती हैं। और एक मुनाफिक को, एक काफिर को, एक फाजिर को जब कब्र में दाखिल किया जाता है तो कब्र कहते हैं तेरा आना नामुबारक है, जितने लोग मेरे पुष्ट पर चलते थे उसमें सबसे नापसंदीदा तू था, अब तू मेरे हवाले किया है तो तू मेरा मामला देखेगा। बोले कब्र ऐसे उसे जकड़ दे कि उसकी फसलियां ऐसे, अल्लाह के नबी ने उंगलियों से इशारा करके बतलाया कि वो फसलियां उसकी आपस में ऐसे घुस जाती हैं जैसे उंगलियां एक दूसरे में घुसती हैं, जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी पर अल्लाह उसके दूसरे मसले को हल करेंगे, उसकी कब्र के आजाब से हिफाजत करेंगे। तीसरा, पुल सिरात पर से बिजली की तरह पार फरमाएंगे, जो जहन्नम पर है, बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज है, पुल है जो 500 साल चढ़ान, 500 साल ढलान, 500 साल बराबर वाला रास्ता है। भी आगे बोले कि नामे अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा, जिनके सीधे हाथ में नामे अमल दिया जाएगा, हदीसों में उनकी जन्नत का तज़किरा है कि उनको जन्नत ऐसी दी जाएगी कि उनको एक महल दिया जाएगा जिसके 70,000 कमरे होंगे। आज हमारे खोलिया को कत्ती दरवाजा से एक दरवाजा, घर को दूसरा दरवाजा से एक आगे पीछे, लेकिन जो महल जन्नती को दिया जाएगा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, उसमें गारा हीरे जवाहरात का, और महल ऐसा रहेगा कि उसके 70,000 कमरे रहेंगे, एक कमरे को 70,000 दरवाजे, एक दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते इसकी इस्तकबाल को रहेंगे कि सीधे हाथ में जिसे नामे अमल दिया जाएगा उसकी जन्नत का हाल है। फिर आगे बोले कि बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। 5 अमाल पर, 5 वक्त की नमाज पर ऐसी अल्लाह की मदद है। और अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने के नबी जी तुम भी नमाज का हुक्म, तुम भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म करो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें दुनिया में रोजी कमाने के लिए नहीं भेजा, नहनु नर्ज़ुक़ु, रोजी तो हम आपको देंगे, वला आक़िबतु लित्तक़वा, और हमारी तक़वे पर हमारा यकीन रहना। कैसे हमारा हाल क्या है, देखो कि नमाजों को छोड़कर दुनियादारी में लगी, नमाजों को छोड़कर काम कारोबार लगी, कैसी बरकत आएंगी बोलो। सहाबा जब आज़ान होते थे तो दुकानी की दुकानी खुली की खुली छोड़कर जाते थे, सारा बाजार खाली होता था, जब आज़ान शुरू होती तो सारे जिस हाल में उस हाल में छोड़कर चले जाते थे नमाजों को। आज हमारा हाल यह है कि आज़ानों पर आज़ानें सुनी जाती हैं, लेकिन ऐसे दुकान छोड़ने की नौबत नहीं आती, काम कारोबार छोड़ने की नौबत नहीं आती। कारगुजारे ऐसी सुनी कि 1.5 लाख की उसकी नौकरी थी, लेकिन उसने नौकरी इस वजह से छोड़ी कि भी नमाजों के एहतमाम नहीं हो रहा और मशवरे में शिरकत नहीं हो रही, मस्जिद के अमल नहीं हो रहे, इसलिए 1.5 लाख की नौकरी छोड़ी काम कारोबार की वजह से, काम इसके नमाजों की वजह से। आज हमें ऐसो काम के वास्ते दाढ़ी काट रही, काम के वास्ते नमाजें छोड़ रही, काम के वास्ते हमारी जिंदगियां पूरी दिन की दीनदारी की वाट, पूरी दीनदारी की हमारी पूरी उजड़ रहा। बोल रहे जिस शख्स का दुनिया बन जाए मकसद, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए, अल्लाह उसे उतनी दुनिया देती है जितनी उसे होना आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है।
कि हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजर रहा है कि भाई देखो नमाज़ों के अहतमाम पर अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा कितना फ़ायदा है, और नमाज़ों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। कि नमाज हमारी सही होना, इसके वास्ते हमने इल्म के में होना ज़रूरी है कि भाई कुरान पाक का इल्म है, हाँ हादिसों का इल्म है। आज हमें देखिए तो हमारा कुरान का पढ़ना कितना सही है, आज हमें कितना कुरान पढ़ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जब मुझे ऐसा लगे कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मुझे ऐसा लगे कि मैं अपने अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। आज हमारा हाल देखेंगे तो बड़े बड़े ऐसे जवानों को कुरान पढ़ने नहीं आता। जब हमारी जमात मुदौर में चल रही थी तो हमारे साथ में वहाँ के देहातों के जमातें जोड़ते थे, 3-3 दिन के 20-20 साथिया, 15-15 साथिया एक जमात में रहते थे, सारा नौजवान तबका। देखिए तो कलमा नहीं आता, इल्म का हाल यो है, कलमा नहीं आता। निकाह हो रहे बुजुर्ग लोग का कलमा नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उनको रटाना पड़ता था दिन भर। नुस्ती बोलने की बात नहीं है, यो दिन भर रटाना पड़ता था। इल्म का हाल हमारा यो है कि अगर कोई बस्ती में एक हाफिज नहीं है तो वो बस्ती पर अल्लाह के आज़ाब आने का खौफ है, खौफ रहना उनको फ़र्ज़ किफ़ाया है। बस्ती में एक आलिम का होना फ़र्ज़ किफ़ाया है, एक हाफिज का होना फ़र्ज़ किफ़ाया है कि हर एक पर जिम्मेदारी है वो। आज हमारा इल्म का हाल यो है कि हम ना, एक तो बोल रहे हैं कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि उग़्ज़ु आलिमन, एक तो तुम आलिम बनो, और मुतअल्लिमन या इल्म को तवज्जो से सुनने वाले बनो, और एक तो उग़्ज़ु आलिमन, एक तो तुम आलिम बनो, और मुतअल्लिम या तो तालिब इल्म बनो, और मुहिब्बन या तो इल्म को मोहब्बत, इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो, और मुस्तमियान और इल्म को गौर से सुनने वाले बनो। पाँचवीं किस्म वाले मत बोलो वरना हलाक हो जाओगे। पाँचवीं किस्म बोले वल खामिसतु अन तुबग़िज़ल इल्म व अहली, कि पाँचवीं किस्म है कि तुम इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखने वाले बनो। आज हमारा यो हाल है कि उलमा से मोहब्बत दूर है। बोलती एक आलिम की ज़ियारत हकीकी इबादत है, अल्लाह के नबी की हदीस है। आज हम अल्लाह के नबी को तो मानते ही, अल्लाह के नबी की बातों पर हमारा कत्ता अमल है, कत्ता यो है हमारा देखना। हमारी ज़िंदगी सारी के सारे अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ गुजर रहे हैं, और हम इस समझ रहे कि हम कामयाब होना नामुमकिन है। इकराम की सिफत हमारी ज़िंदगी में कितनी है कि हम देखें कि भाई ये सिफत बोलने वास्ते नहीं है जो हम जमातों में वक्त लगाते हैं, 4-4 महीने चिल्ला साल लगाते हैं, हाँ 3-3 दिन हर महीने के हैं। हर एक जमात में हमें मुज़ाकरा करते हैं कि भाई कैसा वक्त लगाना, 6 सिफत का मुज़ाकरा। यो बातें मुज़ाकरे के वास्ते नहीं है, यो बातें ज़िंदगी में लाने के वास्ते हैं। आज हम गौर व फिक्र करें कि ईमान वाली सिफत हमारी कितनी ज़िंदगी में आई, नमाज हमारी कितनी ज़िंदगी में आई, इल्म हमारी ज़िंदगी में कितना आया, इकराम हमारी ज़िंदगी में कितना आया। अल्लाह के नबी की हदीस है कि वो 3 शख्सों के बारे में, जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे मैं उसको जन्नत के अतराफ में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो मजाक में भी झूठ छोड़ दे मैं उसकी जन्नत के दरमियान में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो अपने अखलाक को अच्छे करे मैं उसकी जन्नत के आला दर्जों में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आज हम हमारा हाल देखें कि इतने छोटे छोटे मसलों पर हमारे घर में झगड़े शुरू होते हैं, छोटे छोटे मसलों पर भाई भाइयों में झगड़े शुरू होते हैं। आज हमारे हुकूक का मामला यो है, अल्लाह ताला अपने हुकूक को माफ़ करने वाले, लेकिन अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं करने वाले। एक शहीद के आज इस हदीस पढ़े कि एक शहीद के अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करने वाले, कर्ज को नहीं माफ़ करने वाले। जब तक उन्हें कर्ज नहीं अदा करता तब तक उसे जन्नत नहीं है, उसकी रूह बीच में लटके रहने वाले। कि हाल हमारा ऐसा है कि हम जिंदगियां हमारे ऐसो यो सिर्फ सिफात हमारी ज़बान पर रही, यो बातें हमारी ज़बान पर रही, हमारे अमल में नहीं आए। जब तक ये बातें अमल में नहीं आते हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारी उम्मत खड़ी नहीं होने वाली। बोले अल्लाह के वादों का यकीन रखते हुए इन बातों को हमारी ज़िंदगी में लाना, तब हम कामयाब होंगे, तब हमारे अंदर वो जज्बा आएगा, तब हमारे अंदर वो मेहनत का शौक़ व ज़ौक़ आएगा। कि सहाबाओं के अंदर वो बात थी कि सहाबा पहले तो अपने ऊँट से किसी के ऊँट ने पानी पिया तो सालों तक झगड़ते थे, वसीयत करके मरते थे भाई इसके ऊँट ने मेरे ऊँट से पहले पानी पिया, ये झगड़ा चलते रहेगा। लेकिन जब ईमान लाए तो वो जंग के वाक़यात नहीं सुनते कि भाई पानी पिलाने के लिए भाई के पास जा रहे हैं, आज सुने तो नहीं बाजू वाले को हाथ कर रहा है, वहाँ जाकर पानी पिलाने की सोचे नहीं बाजू वाले को हाथ कर रहा है। तीनों जने प्यासे मरे, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना पसंद नहीं किया। कि जब उन पर ईमान की मेहनत हुई, जब उन पर मेहनत हुई तो उनकी ज़िंदगी ऐसी बनी। सहाबाओं की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। इसलिए हज़रत जी बार बार फरमाई
کہ دین کے کام کرنے والوں کو حیات الصحابہ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. دین کے کام کرنے والوں کو حیات الصحابہ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ نے زندگیاں کس طرح گزاری، کس طرح اللہ کے راستے میں وقت لگایا، کس طرح انہوں نے ایسو اکرام کیا، کیسا اکرام کیا کہ اللہ کے نبی بولی بھئی یہ مہمان ہے، بھئی اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ بھئی میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی بولے میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھئی دے مہمان کو ان کے ساتھ بھیج دے. جا کو گھر والی کو پوچھنے کہ بھئی کچھ ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے، جو ہے وہ بچوں کے لیے، ہمارا تمہارا تو آج روزہ ہے. بولے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دینا اور ہم بیٹھ کر مہمان کھائیں گے. مہمان کے ساتھ بیٹھ کو صرف اشارے سے کھا رہے ہیں اندھیرے میں. مہمان نے کھایا تو اللہ نے ان کے آیت اتاری، اللہ نے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتاری، قیامت تک کی وہ آیت پڑھی جائیں گی. ایسا انہوں نے اکرام کیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے کون کیا بھی منگیا، اللہ کے واسطے دینے کا ہے، اللہ کے واسطے کون فقیر منگنے آیا تو پہلے ہاتھ ڈالے، اچھی خاصی بڑی نوٹ نکلی تو بیچارہ ہاتھ ڈالتے ہی 1 روپے نکال کو دیتے. کیسے اس میں فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں کہ لاکھوں اشرفیہ صبح کو نظر ہدیے میں آتی تھی، شام تک ایک بھی اشرفی کا ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا تھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں لگاتے تھے. صحابہ نے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، کیونکہ صحابہ نے بات کو جانے تھے کہ اللہ نے جان مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے. نہیں ہے، یہ مال میرا کب کیسا ہے؟ مرنے کے بعد سارا پیچھے چھوڑ کو جا رہی. مرنے کے بعد میں کیا مال ساتھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. وہ مال ساتھ میں آنے والا جو انہیں آگے بھیجیں گے وہ فائدہ ہونے والا. اللہ نے ایسو قرآن میں ایک تجارت کے بارے میں فرمایا. انسانوں کو اللہ نے ایک تجارت کی طرف متوجہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت کی دعوت دیتا ہوں، ایسے سوداگری کی دعوت دیتا ہوں جو تمہیں عذاب عالم سے بچا لے. تو کیا ہے وہ سوداگری؟ بولے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. آگے فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنی جان و مالوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. آگے فرمایا یہ کام کرے تو ابھی اللہ کے راستے میں نکلے، ہاں اللہ پر اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا ملنے والا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے مکانوں میں داخل کیا جائے گا جو قائم دائم رہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بہترین کامیابی ہے. کہ آج ہم یہ اصل کامیابی ہے، دنیا اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے. دنیا تو دنیا کی مثال ہم سارے کے سارے دیتے ہیں. دنیا کیسی ہے؟ بولے سمندر کے اندر سوئی ڈبو کو کاٹے، جو پانی سوئی کو لگتے ہیں وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. لیکن ہمیں وہ ایک بوند کے پیچھے لگے، ایک بوند کو بنانے کے پیچھے لگے. اصل مقصد وہ سمندر کو بنانا ہے. اصل مقصد وہ سمندر کی فکر کرنا ہے، اصل مقصد آخرت کی فکر کرنا ہے. مثال کے طور پر سمجھو کہ انسان ایک پہاڑی کے گھر میں رہ رہے اور ایک عالیشان گھر ایک جگہ کو بنا رہے، تو اس کی سالانہ یا ماہانہ جو بھی اس کی تنخواہ ہے ان یہ پہاڑی کے گھر پر لگاتا ہے. کیا وہ نوین بن رہے سو گھر پر لگاتا ہے؟ بن رہے سو گھر پر لگاتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے، آسان سی بات ہے. جو بھی جمع کنجے ہے وہ اکثر اس کے پر لگاتے ہیں. کیا گھر میں لاؤ کہ تو ذرا رکو کرتے ہیں، وہاں کیا ہونا سو وہاں لائیں گے کرتا ہے. کیا لے کو کیا کرنے کا ہے، یا چھوڑ کو جانے کا ہے گھر کو، ایسا کرتا. دنیا کا حال بھی ایسا ہے. آج ہم پہاڑی کے گھر میں چھیں، ہمارا اصل گھر آخرت کا گھر جو بن رہا ہے، ہمارے اصل جو زندگی آخرت کی زندگی جو بن رہا، اگر ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے خود بولے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شروع میں تلاوت کیا، ثلاثۃ کلھم ضامن اللہ، 3 شخص اللہ کی ذمہ داری میں ہیں. ان عاش رزق و کفیہ، اگر زندہ رہیں گے تو اللہ ان کو روزی دیں گے اور ان کی کام میں مدد کی جائے گی. وَإِمَّا تَيُدْخِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر ان کو موت آئیں گی تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ 3 شخص کون ہیں؟ من دخل فسلم بیتہ فهو ضامن علی اللہ، کہ گھر میں جانے سے پہلے جو سلام کرے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. من خرج مسجد فهو ضامن علی اللہ، جو مسجد کو بار بار جائے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے کہ اللہ اسے ایک تو زندہ رہیں گے تو اسے روزی دیں گے، اس کے کاموں کو بنائیں گے، اور اسے موت دیں گے تو اسے جنت دیں گے.
कैसे अल्लाह के रास्ते में कैसे लोग का वक्त लगा रही। एक हमें कारगुजारी सुने नहीं का तो देखे हमें उनके साथ में चल रहे फिर रहे थे तश्कील में। आज हमें क्या करते हैं 24 घंटे में सामने 2.5 घंटे देने नहीं होते। 2.5 घंटे में कहते हैं सुबह 15-20 मिनट लगाए, शाम को 15-20 मिनट लगाए, तो दूसरे दिन मशवरे में कारगुजारी 2.5 घंटे को उनको लगाए तो हाथ हमारा ऊपर रहता है कि हमें 2.5 घंटे लगाए। कैसा वक्त लगा रहे हैं देखो, क्या हमें 2.5 घंटे गिन चुन को देते हैं। हमें ऐसे देखिए कि बड़े बड़े डॉक्टर जो बड़े बड़े पोस्टों पर आई उन्हें कैसा कि 6 घंटे जॉब को, 5 घंटे घर में आराम को, 100 बच 13 घंटे मस्जिद को देते। 13 घंटे में अपनी मस्जिद के तकाजे, दूसरे तकाजे, तश्कील वसूली सारे काबू में आते। एक लिए तो जॉब छोड़ को आए इसके वास्ते कि मुझे वक्त नहीं देने हो रहा, तो 24 घंटे फ्री उन्हें पानी का वाटर प्लांट डाले और दिन भर वो कामगार हैं वो सब करती हैं, 24 घंटे मस्जिद में रहती। उन्हें साल को ऐसे 4 महीने की अभी जमात उनके रवाना करे हमें कि उनको बस करना पड़ा था। 15 जना को उन्हें कैंसिल करे, 20 जना की जमात ले गए, नागालैंड जमात गए वो मुदोई से। 15 जना को कैंसिल करे, 20 जना को ले को गए। कैसे मेहनत, रोजाना की तश्कील वसूली। आज हमें कैसा करते हैं, इज्तिमा 2-3 तारीख को कहे तो 27, 28, 25, 26 से चालू करते मेहनत। इतने 4-5 दिन में इतनी बड़ी मेहनत काबू में नहीं आती। असल मेहनत मस्जिद और जमात की मेहनत है। असल मेहनत हमारे 5 अमाल में वक्त लगना है। क्यों हमें वक्त तो लगा को आती। जिहाद असगर बोलते हैं, जिहाद अकबर यहाँ का है, लेकिन जिहाद अकबर में देखे तो एक भी साथी नसता है। जिहाद असगर में आए तो हुजुम का हुजुम जा पाता है। बोले हमें वहां देखे सो बात कि एक मस्जिद में 56, 60 साथी 4-4 महीने लगा पुराने। लेकिन जो हम भी 1.5 साल की 7 महीने की कारगुजारी बोले कि 7 महीने में 16 4 महीने की जमातें काम कर पाए। चिल्ली की तरतीब पूरी बंद है। ये जो 16 जमातें काम कर 16 जमातें का हर एक फर्द मस्जिद में तुमने दिखने वाला। लेकिन जो पुराने वक्त लगाई वो साथी कौन भी वक्त वहां नहीं कि नहीं है। इन्हें जिहाद असगर तो कर पाए, लेकिन जिहाद अकबर को छोड़े। असल जिहाद यहाँ का जिहाद है, असल मेहनत यहाँ की मेहनत है। 5 अमालों के साथ जुड़ कर रहना। इतने आलिशान मस्जिदें देखे तो मस्जिद आबाद नहीं, बहुत दूर की बात नहीं है। हमें हमारी जमात एक बस्ती में यहाँ कायम था, यहाँ वाड़ी में आने से पहला एक बस्ती में जमात कायम था। असर में हमें नमाज पढ़े, बस्ती का एक भी साथी न था। हमारे नुस्खे साथी थे 17 साथी हमारे छत्ते पीछे हमारा इमाम, हमारी कसर हम ही नमाज पढ़ाए। बस्ती का एक भी साथी न था। हमारे बस्तियों का हाल है कि हाल है कि तो हमारे जिम्मेदार साथी वक्त नहीं देते मस्जिद को। हमारा वक्त मस्जिद में नहीं लगता, हमारे 2.5 घंटे नहीं लगते, हमारे मुलाकातें नहीं होते, सरसरी मुलाकातें। गए मुझे क्या ठीक है नहीं, हाँ जरा मशवरे का, जरा नमाज का। इससे मेहनत काबू में नहीं आती। इससे ऐसो अल्लाह हमने अल्लाह बोल रही नहीं, हर एक उम्मत को हर एक उम्मती के बारे में पूछने वाले और एक उम्मती को सारी उम्मत के बारे में पूछने वाले। हम क्या जवाब देने वाले बोलो। आज कत्ता मजमा बिना नमाज की जिंदगी गुजार रहे। आज कत्ते लोग का नमाज नहीं पढ़े, मगरिब की ईशा की नमाज नहीं पढ़ते ही कौन नहीं पढ़ते। असर जोहर की कत्ते जने नमाज नहीं पढ़े, उनका हाल क्या है बोलो। उनकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला। उन्हें हमारे सामने जहन्नम में जलने वाले, हमारे साथ खाने पीने वाला आदमी, हमारे साथ चलने फिरने वाला आदमी, हमारे घर का आदमी 2 करोड़ 28 लाख एक नमाज छूटने पर जलने वाला। बाकी नमाज छुट्टी पर प्लस मारते गए तो कत्ता बोलो। हमारे दिन का कैलकुलेशन नहीं होता हमारे मोबाइल में। हमें अगर हमें वैसा हिसाब किताब करे तो अमल का कि हमारे मोबाइल हमारे कंप्यूटर कैलकुलेशन के कासे नहीं कर सकते। इतना हमने आजाब होने वाला और हम सोचते हैं कामयाब होंगे, हम जन्नत में जाने। जरूर जन्नत में जाने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हर एक ला जरूर जन्नत में जाएगा, जरूर दाखिल होगा। लेकिन ऐसा जल खल को एकदम राख भून हो को फिर वहां से निकल को फिर रहम व करम की निगाह हमारी पर पड़ी तब नहरे आयत में हमें डाल को तब हमें जन्नत में जाने वाले। ये कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी है कि डायरेक्ट जन्नत में जाना। इसके वास्ते देखो हमें हमारे औकात को फारिग करने की जरूरत है। उम्मत का हाल बहुत बेहाल है, उम्मत का हाल बहुत बेहाल है। देखिए तो हमारे आजू बाजू वालों को कलमा नहीं आता, हमारे आजू बाजू वालों की नमाजें सही नहीं है। अब वक्त लगा को आने वालों की भी नमाजें सही नहीं है कि उनका रुकू सही नहीं है, उनका सजदा सही नहीं है, उनकी सूरत सही नहीं है, उनका कुरान का पढ़ना सही नहीं है। ये फिक्रे कब होने वाली, जब हमें 2.5 घंटे लगाएंगे, जब हमें मस्जिद की तालीम शुरू करेंगे, जब हमें मुलाकातों में बार बार जाएंगे। अल्लाह के नबी का वक्त अगर हमें देखेंगे जिंदगी का, अल्लाह के नबी का वक्त दावत में ज्यादा लगे। अल्लाह के नबी का वक्त दावत में ज्यादा लगे। एक घर को 70 मरतबा जाना, कब तक दावत में वक्त लगा रहेगा बोलो। आज हम ही कहते किसी के घर में तीसरी मरतबा नहीं जाते।
आज एक दिन में 2 बार मुलाकात हुई तो दूसरे दिन उसके घर को नहीं जाते, वो नहीं भला 5 वक्त को नमाज को नहीं आते। अल्लाह के नबी 70 मरतबा एक घर को जाते थे, कड़वी कसली सुनते थे, उनके मुँह पर दरवाजे बंद करते थे, लोग का कचरा डालते थे, थूकते थे, तब भी उन्हें मेहनत करे, वो गमो फिक्र को लेकर ठहरे। मोल्ला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो गमो फिक्र को लेकर ठहरे, अकेले ठहरे थे। आज सारे आलम में काम फिर रहे, आज सारे आलम में काम हो रहे। कैसा काम करे भाई? पगार दे को नहीं नमाजें पढ़ाई, पगार दे को नहीं दिन कलमा सिखाई। हमें कारगुजारी सुनी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उनका खेत ऐसा इतना था कि 3 घंटे तक ट्रेन उनके खेत में चलती थी, 3 घंटे तक सारा के सारा उन्हें दिन पर लगाए, बेच को भाई पगार तनख्वाह दे को नमाजें पढ़ाए। एकले को तनख्वाह मिली तो नहीं पा रहे, उसके सारे दोस्तों को, उसके सारे कामगारों को बुला को लाने वाला, और राब को इतना मिल रही है, बैठ को इतना मिल रहा है, क्या करने का? नमाज रोजा पढ़ने। उनके घर वालों ने भी कैसे कुर्बानी दी। जब सारा खत्म हुआ तब उन्हें जाको उनके घरवाली को बोले, उनकी घरवाली बड़ी नवाब की बेटी हत्ती कि वे देखो भाई मेरे पास जो हत्ता सब खत्म हुआ, तो मेरे साथ जिंदगी गुजारनी सच्चे कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो ऐसा किसके साथ भी जाको निकाह कर ले, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार। वो अल्लाह की बंदी ने 2 रकात नमाज पढ़ी, सारे गहने लेकर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सामने की कि इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मैं खुशी में तुम्हारे साथ थी तो गम में तुम्हारे साथ रहूंगी। उनकी कुर्बानी पर आज हमारे तक दिन आए। सहाबा ने नाक कान कटाए, सहाबाओं ने गर्दनें कटाए, उनकी कुर्बानी पर आज हमारे तक दिन आए। अगर ये सहाबाओं के बच्चे हमारी गर्दनें पकड़ेंगे, कल क़यामत के दिन पूछेंगे, दिन को हमने तुम तक पहुंचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या में सुनते हैं कि उन्हें और उनके वालिद 2 जने घर में आते, 2 जने, ना तीसरी उनकी माँ थी, ना बहन थी, ना भाई तक कौन भी न था। जब जंग में जाने का ऐसो आवाज़ लगी तो इन्हें इनके कपड़े वगैरह धोए, खाना वगैरह बनाए, बच्चे को बनने की बेटा खाना बराबर पाबंदी से आज यो खा कल यो खा, इतने दिन की तरतीब लगाए, यो आज यो कपड़ा पहन कल यो कपड़ा पहन। उन्हीं जमात में गए, अल्लाह के रास्ते में गए, यो इन्हीं खुद बड़े उनके दोस्तों को कारगुजारी सुना रहे थे। हाँ तो साहबा में इसकी वाक़यात हैं, यो उन्हीं कारगुजारी सुना रहे थे कि मैं आज यहाँ बैठ कर रोता था, मस्जिद में वहाँ बैठ कर रोता था, अब्बा के याद में। छोटे थे, 6-7 साल के बच्चे। जब जमात वापस आने का ऐलान मदीना में हुआ तो टीले पर चढ़ को देख रही कि मेरे वालिद साहब आते हैं। एक जमात है उसमें नज़र नहीं आए, दूसरी जमात है उसमें भी नज़र नहीं आए, तीसरी जमात है उसमें भी नज़र नहीं आए, चौथी जमात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। वहाँ जाकर अल्लाह के नबी पूछ रही कि अल्लाह के नबी मेरे अब्बू कहाँ हैं? फिर उन्हें उधर नजर फिराते अल्लाह के नबी को मालूम था कि इनकी वालिद शहीद हुई। फिर वो उधर जाकर पूछने कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, इधर जाकर पूछने कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। अल्लाह के नबी घोड़े से उतरे और बोले कि बेटा आज से मैं तेरा बाबा और आयशा तेरी अम्मा, तो कैसा अच्छा होगा। वो बच्चे के दिल पर क्या गुजरे रहेंगी। उन्हें ऐसे कारगुजारा और ऐसे जो कुर्बानियाँ देखो, आज हम तक दिन पहुँचे। आज हमारी मस्जिदें देखे तो सारे के सारे खाली हैं, सारे के सारे वीरान हैं। बहुत दूर की कारगुजारी नहीं है, यो हमारे इलाके की कारगुजारी है, भालोनी सेंटर की कारगुजारी है। हो मैं बोल रहा था मस्जिदा खाली यो कैसा होने वाला, बोलो हमारी उम्मत का हाल कब होने वाला, कब फिक्रें होने वाली हमारी। ये जिम्मेदार तबका सोया तो उम्मत भी सोत्या। अगर ये जिम्मेदार तबका कुर्बानी पर उतरिया, ऐसा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद को दिया, तब ये मामला ठहरते पीछे का। आज हमारा हाल ही है, कैसा होने वाला बोलो। इसके वास्ते देखो 4 साल के बाद में इज्तिमा तय हुए, 4 साल के बाद में। इससे पहला वो आस्ते में तय हुआ था, कारखाने में पिंडा लगा था, निकाले थे। उसके बाद 4 साल के बाद में आज इज्तिमा तय हुए। अल्लाह वालों का नुज़ुल हो रहा है, अल्लाह वाले आ रहे, जब इज्तिमा से जमातें बन रही, अल्लाह के रास्ते में निकाला जा रहा है। आज अगर हमें आज देखो तारीख कत्ती है, 19 तारीख है, 1 तारीख से जमातें बन रही। आज अगर मस्जिद और जमात फाल होंगी, आज अगर मस्जिद और जमात फिक्र लेंगी कि सारे के सारे जिम्मेदार 2.5 घंटे बराबर लगाएंगे तो 100% मकानों में इज्तिमा की दावत चलेंगी। बड़ों का मंशा है कि हर एक घर में इज्तिमा की दावत चलना, हर एक फर्द तक इज्तिमा की बात चलना, हर एक फर्द माजूरिन छोड़ को हर एक फर्द बच्चा भी इज्तिमा में पहुंचना और वहां से अल्लाह के रास्ते में जमातों का निकलना होना। आज अगर हमें गफलत की जिंदगी गुजारेंगे, अगर हमें गफलत की जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे आने वाला तबका अल्लाह का नाम लेते कि नहीं हमने मालूम नहीं। आने वाला हमारा तबका नमाज पढ़ते कि नहीं मालूम नहीं। बाबा नमाज नहीं पढ़ा तो बेटा भी नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ा तो उसका पोतरा भी नमाज नहीं पढ़ता, सारी कुफ्र में जिंदगी गुजारे। कैसे कि कौन ब्याह को क्या भी नसीहत करता है, कौन ब्याह को जरा पैसे को लालच देता है तो मुर्तद होते जा रहे। कारगुजारी अगर हमें बैरून सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसी कारगुजारी है। एक जमात गई एक इलाके में, तो वो एक साथी करने लगे कि भाई तुम्हें थोड़ा लेट करे,
थोड़े दिन पहला अगर तुम्हें मेहनत को आए थे, थोड़े दिन पहला अगर तुम्हारी जमात आए थे, तो मेरा भाई ऐसे मुर्तद होने से बचा था कि उसे ईसाई लोगों ने ऐसे बंगला दे, ऐसे नौकरी दे, गाड़ी दे, ऐसे एक लड़की से उसका निकाह कराए, देखो नहीं मुर्तद होकर ऐसे बड़े बंगले में जिंदगी गुजारे, आज मेरा पतरे का छेड़ा है, उन्हीं ईमान पर कायम दायम हत्ता, अगर उसे भी कौन अल्लाह का शुक्र हत्ता उसका जरा ईमान हत्ता कर को, नहीं तो उन्हें भी मुर्तद होता है। ऐसा हाल हमारी उम्मत का है, क्या फायदा होने वाला। हजरत जी बोल रही हैं कि जो हमें 4-4 महीने लगा रही असल खुरूज नहीं है, असल खुरूज हुआ है जो बैरून उम्मत की फिक्र है। तीन तबकों में हमारी मेहनत है, एक अपनी जात की मेहनत है, दूसरा अहल वायल की मेहनत है, तीसरा उम्मत की फिक्र है। अभी देखो यो पूरे इंडिया को अहल वायल बोल रहे हैं हजरत जी, पूरी मुल्क को, अपने मुल्क को अहल वायल बोल रहे हैं। इसके वास्ते देखो भाई जल्दी से कवायद पूरे कर को, जल्दी से 3-3 मरतबा 4-4 महीने लगा को बैरून की तकाजे पूरे करने के। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो लोगों मुर्तद पर मुर्तद होते जान, हर एक के बारे में अल्लाह हमने सवाल पूछने वाले, हर एक के बारे में अल्लाह हमने सो कल क़यामत के दिन पूछने वाले, हम क्या जवाब देने वाले। ये जवाब देने के वास्ते हमने मेहनत ज़रूरी है। वो सलमान फारस हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनते नहीं, क्यों निकलने लगी, मैं अल्लाह के रास्ते में निकलता हूँ, बहुत मोटे हत्ते, बहुत वजनी हत्ते, मरजुल मौत में बीमार, ऐसी बीमारी की हालत में थे, बोले मैं अल्लाह के रास्ते में चलता हूँ, भैया अल्लाह के रास्ते में मेरा इंतकाल हो तो मेरे रास्ते को भी अल्लाह के रास्ते में चलाओ कि चला, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पूछेगा तो कहने लगा कि अल्लाह मैं ऐसे ऐसे हालत में भी तेरे रास्ते में चला, यहाँ तक कि मेरी राश भी तेरे रास्ते में चला। इसके वजह से देखो भाई जल्दी से कवायद पूरे कर को अल्लाह के रास्ते में ऐसो बैरून के ऐसो कवायद, अभी कवायद पूरे कर को बैरून को जाने के वास्ते भी इरादे कराओ कि कवायद पूरे करने कौन कौन तैयार है। बोलो 4-4 महीने कौन कौन तैयार है इज्तिमा से या उसके आगे पीछे, बोलो अगले सन नाम के यासीन में दूसरे मरतबा, भाई जिनके दूसरे मरतबा लगे उन तीसरे मरतबा के अज़ाइम करो, जिनके तीसरे मरतबा लगे उन बैरून के अज़ाइम करो। भाई काम बहुत है, हमारे पास काम बहुत है, वक्त बहुत कम है, इलाके की बहुत हमारे पास है मेहनत के वास्ते बहुत। हम सेंटरों का हमारा हाल यो है, इलाकों का हाल यो है। बोलो भाई खुतबुद्दीन चांद कब से, माशाल्लाह, अल्लाह जान में माल में उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनका निकलना आसान करे, अल्लाह बरकतें दे। बुरली के क्या माशाल्लाह, अज़ाइम कराओ भाई साथी। वे निकलने वाली ज़ात अल्लाह की, हम निकलना चाहे तो भी निकल नहीं सकते, निकलने वाली ज़ात अल्लाह की, अज़ाइम करना हमारे जिम्मे है। जो पहले अज़ाइम कराएं वो भी कराओ भाई, अपने नाम लिखाना है कि अल्लाह के फरिश्ते में नाम डालना है, अल्लाह कबूल करे तो निकलना है, इरादे कराओ भाई। सलीम भाई इस्तेमा से कहाँ के वाड़ी